آپ پہلے یہ چھوٹی سی آواز سنیے. یہ وائس کس کی ہے میں آپ کو بتا دوں گی کس کی ہے. ایک بہن نے دوسری بہن کے لیے یہ بات کہی ہے اور بہت سچی اور صاف بات کہی ہے، کیونکہ میں اسی لیے اس کی باتوں پہ یقین بھی کرتی ہوں اور اس کی تعریف بھی ہمیشہ کرتی ہوں. میں نے کبھی بھی اس کے خلاف کبھی ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ یہ بندی جو ہے سچی اور کھڑی ہوتی ہے. تو چلیے پہلے یہ سن لیجئے کہ ایک بہن نے دوسری بہن کے بارے میں سچ کیسا بولا اور کیوں بولا. غور سے سنیے پھر بات کرتے ہیں. میرے خیال سے وہ چیزیں آپ کے دل سے کبھی نہیں نکلتی. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جو رویے ہمارے ساتھ بہت کبھی برا کرتے ہیں، بھلے ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں. تو اسی طرح شاید کچھ اذیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بھلے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، آپ بھلے پلٹ کے جو ہے ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھ رہے ہوتے، لیکن آپ کا دل شاید بالکل صاف نہیں ہوتا. جو بات ہے میں وہ بات کروں گی، میں کوئی منافقت سے نہیں چلتی کہ میرا دل صاف نہیں، بولوں نہیں میں نے تو معاف کر دیا، میرا دل صاف ہے. تو شاید وہ اذیتیں اتنی زیادہ ہم سہ چکے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی جو ہے نا، کیونکہ ہمارا تو وہ وقت برباد ہو چکا نا. جو ہماری صحت اس ٹائم پہ خراب ہونی تھی، جو وقت ہمارا خراب ہونا تھا، وہ تو وقت گزر گیا. اب بعد میں احساس ہوئے، وہ چیز ہوئی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑے انسان کو مجبور کرے یا کر رہا تھا، بندہ اپنی بھی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور رکھنی چاہیے بھی. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو نا غلط کو صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی حسد یا اپنے جلن میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ آپ جو ہے نا صحیح غلط کی تمیز ہی بھول جاؤ. میرا تو اس بات پہ پورا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اسی چیز سے نہیں آزماتا کہ میں اگر یہ بولوں کہ میرے جیسا وقت کسی پہ آیا وہ ہو. کیونکہ کسی کے ساتھ بھی کی ہوئی زیادتی جو ہوتی ہے نا، وہ بہترین جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے اس کو جو ہے اسی آزمائشوں سے گزارنا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر کسی کے لیے برا کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، اور کسی کے لیے اگر آپ گڈھا کھودو گے تو آپ اس گڈھے میں خود ہی گرو گے. تو یہ والی چیز ہے. تو کیا کرنا چاہیے انسان کو ایسے اس میں کہ مطلب کیا ایسے لوگ کے ساتھ کرنا چاہیے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے اس بات کو ہوتی ہے کہ یار کتنا مطلب کوئی گر سکتا ہے کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، یا کوئی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی سے جو ہے نا مطلب اتنی حسد انسان رکھ سکتا ہے کہ اتنا مطلب کوئی گر جائے نا کسی کو تکلیف میں دیکھنے کے لیے. تو انسان خود بھی تیار رہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ دوسرے کے لیے سوچتے ہو نا برا، وہ قدرت آپ کے ساتھ کر کے دکھاتی ہے. تو میرا تو بس اسی چیز پہ ایمان ہے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور. امبر یا شبو آپا یعنی کہ امبر کی مما جان، آپ لوگ سویٹی جی کو کیوں نہیں بخش دیتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کے پڑے؟ جب تک آپ لوگ سویٹی کا نام نہیں لیتے، محسن سلطان کا نام نہیں لیتے، آپ لوگوں کے کھانے ہضم نہیں ہوتے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ نے جو جا کے منتیں مانی ہوتی ہیں درگاہوں پہ، ماتھے رگڑے ہوتے ہیں، ناک سے لکیریں کھینچی ہوتی ہیں، وہ آپ کی منتیں پوری نہیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو لازمی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ان کا نام لینا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑی؟ 4 سال ہو گئے ہیں. 4 سال تو کتا بھی چھوڑ دیتا ہے کسی کے گھر کا پیچھا کہ ہاں بھئی یہاں پہ مجھے ہڈی نہیں مل رہی ہے، چلو میں کوئی اور گھر دیکھ لیتا ہوں، شاید وہاں سے مجھے سوکھی ہڈی یا روٹی یا کچھ بھی مل جائے تو میں اپنا پیٹ بھر لوں. مگر آپ نے باری باری تمام ریئیکشن چینل والیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا. ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس بندی کو میں اب ٹارچر کرتی رہوں؟ آپ بھی ٹارچر کرتی ہیں، آپ کی بیٹی بھی ٹارچر کرتی ہے. موقع ملتے ہی آپ نے جتنے ریشن چینل والی کو ان کے پیچھے لگایا ہے، وہ کبھی آپ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، کبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتی. جو آپ کہتے ہیں نا پیسے دے کر ریشن چینل والیاں جو ہیں وہ ان پہ ویڈیو بناتی ہیں، آپ پہ ویڈیو بناتی، یہ آپ کی ہی کرتوت ہے، یہ آپ کے ہی کام ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس ٹائم جب امبر اور محسن کا جو پرابلم شروع ہوا تھا، اس ٹائم ان کے معاملات ہوئے تھے، اس ٹائم ہم مان لیتے ہیں کہ کچھ ریئیکشن چینل والیوں کو پیسے دے کے یا ان کو ساتھ دوستی کے ناطے یا بہن کے ناطے کسی بھی ناطے سے ان سے ویڈیو بنائی گئی تھی یا کچھ بھی کہا گیا تھا. اس کو تو میں مانتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ جس کی بات آپ کر رہی ہیں، جن کے اوپر آپ نے کیس کیا تھا، جب وہ اب آپ کے کہنے پر ناک رگڑتی ہوئی آپ کے چوکھٹ پر پیر فقیری کرنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے کہنے پر، آپ کی بیٹی کے کہنے پر ان کو گالیاں دینا شروع کر دی جن کے لیے وہ ویڈیو بنایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، آپ ان کا ہی نام لیتے ہیں کہ سویٹی جی ہیں، انہوں نے بھیا اس ریئیکشن چینل والیوں کو یہ 2-3 جو
गली की कुतियाँ सब हैं, या वो कहते क्या इनको कहूँ, क्या नाम दिया जाए, ये वो औरतें हैं जहाँ पे इनको हड्डी मिलेगी ना वहाँ दुम हिलाना शुरू हो जाएंगी, हड्डी मिलना बंद हो जाएंगी, उसी को काटेंगी, भौंकेंगी। ये वो नमक हराम कुत्ते सब हैं। तो जनाब, आपने अभी अपना एक जो नया टीम स्टार्ट किया है, ये उन्हीं लोगों का टीम है ना जिन पे आप कहा करती थी कि ये लोग हम पे भौंकती हैं, हमें काटती हैं, हमारे घर वालों को गंदा करती हैं। आपकी बेटियों को उन्होंने इतना बदनाम किया, आपके बेटे को छक्का कह दिया, आपके बेटे को नामर्द कहा गया, आपकी बेटियों को गली गली में नंगा करके रोला गया। प्रेग्नेंट बेटी को आपके सबके सामने उसने डिलीवरी करवा दी। अब आप उनके ही गुण गा रही हैं। वो अब आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि माता श्री बताइए हम क्या करें, आप हुक्म दें और हम जाके उनको काट लेते हैं। अभी इतने साल के बाद अभी फिर दोबारा से आपने भी बकबक बकबक करना शुरू कर दिया, हदीस की कुरान की बातें करती हैं, फिर बकबक भी करती हैं। किसी की बेटी, आपकी माशाल्लाह से 2-2 बेटियां हैं, उनके लिए दुआएं करें, उनके बच्चों के लिए दुआएं करें, उनके घर बसने की दुआ करें, ना कि आप किसी और की बेटी के पीछे पड़ जाए मुंह हाथ धो के, बल्कि अपने नहा भी लिया है और जाकर उसके खिलाफ बातें करती, कभी बद्दुआएं दे रही होती हैं, उस बच्चे को बद्दुआएं दे रही होती जो इस दुनिया में नहीं आया। दुश्मन भी होते हैं ना, किसी की बेटी के लिए कभी इस किस्म की बातें नहीं करते, बल्कि उनको लगता है कि चलो इतने साल के बाद खुदा ने उनकी सुन ली है, हम उसके लिए अब दुआएं कर देते हैं। आप माँ हैं, बेटियों वाली हैं, वो भी किसी की बेटी है, आप उनके हक़ में दुआ कर लेती, अच्छी बातें कर लेती, तो आपकी इज़्ज़त हमारी नज़रों में बढ़ जाती। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी सिर्फ बात करती हूँ, मैं किसी और की बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ वही रिएक्शन देती हूँ जो आप लोग हमें अपने वीडियो में दिखाते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्ट करना। आप अच्छी बातें बताएंगे, हम उस पर रिएक्ट करेंगे कि हाँ आपने अच्छी बात की, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके हम गुण गाएंगे। अगर आप कोई गलत काम करेंगी, आपकी बेटियां गलत काम करेंगी, कुछ माशरे को रॉन्ग मैसेज देंगी, हम उस पर रिएक्ट करेंगे। आपको हम छित्रोल भी करेंगे, आपको ट्रोल भी करेंगे, आपकी रोस्टिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमारा काम यही है। आप अच्छे काम करो, हम आपकी तारीफ़ करेंगे। अभी आपकी बेटी क्या कर रही है? उसकी शादी को हो गए हैं 3 साल से ऊपर, 3 साल हो चुके हैं ना कम से कम भी। माशाल्लाह से एक बेटी की माँ बन चुकी है, वो एक बेटी की माँ बन चुकी है। उसके बावजूद अभी भी वो मोहसिन को नहीं भूली, अपने शौहर के साथ घर नहीं बसाना चाहती है, उसके साथ रहना नहीं चाहती है। अगर बसाने वाली औरत होती ना तो आपके नक्शे कदम पे नहीं चलती। अगर नक्शे कदम पे चलाना था अपने तो अच्छे कामों के लिए चलाती, उसको कुछ खाना वाना बनाना सिखा देती, उसको अपने शौहर के साथ मोहब्बत करना सिखा देती, चापलूसी करना मियाँ की सिखा देती, कोई अच्छी अच्छी बातें सिखाती, घर किस तरह साफ रखते वो सिखा देती। आपने अपनी बेटी के दिल में क्या भरा? वही नफ़रत जो आप अपने ससुराल वालों से करती हैं, वही नफ़रत जो आप अपने सास ससुर, अपने ससुराल के तमाम लोगों से करती हैं। आपकी बेटी ने भी आपके उसी नक्शे कदम पे चलते हुए, सास छोटी मासूम सी प्यारी सी गुल्लू सी सास थी, उसके ख़िलाफ़ हो गई, अपने शौहर के ख़िलाफ़ हो गई। उसने समझा कि जैसा मेरा अब्बा है, मेरी अम्मा की उंगलियों पे कलपुतली की तरह नाच रहा होता है। बेचारे मोहिउद्दीन साहब या खुशुद्दीन साहब, क्या नाम है उनका, मैं सही नाम भी उनका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जनाब वो भी मेरे जो शौहर है ना, मेरे अब्बा की तरह अम्मा की उंगलियों में नाच रहा है, तो उसी तरह मेरा शौहर भी मेरी उंगलियों पे नाचेगा। जो मैं कहूँगी कि बंदर बन जा, बंदर बन के उछलेगा, कान पकड़ के उठक बटक कर ले तो वो कर लेगा। भाई मुझे अपना घर दिलवा दो तो वो दिलवा देंगे, मुझे अपनी कोठी का मालिक बनवा दो तो वो बनवा देंगे। तो तुम्हारा जो मियाँ था वो बेचारा शरीफ इंसान, जॉब करने वाला बंदा, ठीक ठाक कमाता है, उसको शर्म हया मालूम है, उसको माँ बाप की इज़्ज़त करना मालूम है। उसको ये नहीं कि 2 दिन की आई भी टके टके की बीवी जो है उसको मैं लेकर सर पे नाचूं, और अपनी माँ को जिसने मुझे पैदा किया, पाल पूछ के बड़ा किया, मैं उसको अपनी ठुड्डी पे रखूं। मोहसिन ने एक गलत काम ज़रूर किया था, मैं इस पर बहुत ये हूँ। मोहसिन बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप के लिए अच्छा है, बहन भाइयों के लिए अच्छा है, सब अच्छा है, अच्छा लड़का। कभी मुझे उसकी खिलाफ कोई बात नहीं करनी, मगर एक बात के लिए मैं बहुत नाराज़ होंगी। इसके लिए मैं उसको स्टार्ट में मैंने इसलिए थोड़ी सी शितरोड़ की थी जब वो मामलात हुए थे, जब अंबर को तलाक हुई थी,
کہ मोहसिन ने भी ज़बानी की थी, और उससे पहले यानी तलाक होने से पहले जब उसका निकाह हुआ था, मोहसिन ने अंबर के कहने पर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ गया, अपनी बहन के ख़िलाफ़ गया। वो तमाम वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है और मैंने काफ़ी सारी वो वीडियो देखी हुई हैं, जो मोहसिन ने लाइव आकर अंबर के साथ अपने माँ बाप के बारे में गलत बातें की थी। कुछ भी कर लिया करो, मैं तो तमाम लड़कों से भी ये कहूँगी, लड़कियों से भी कहूँगी कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ मत जाया करो। ये 2-2 टके के लड़के लड़कियाँ आपको दुनिया में हज़ारों मिल जाएंगे, मगर माँ बाप या बहन भाइयों का रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। स्पेशली माँ बाप की इज़्ज़त करो, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको इस काबिल बनाया है कि आप दुनिया में नज़रें उठा के चल सको, इतनी लंबी लंबी बकवास कर सको। मगर 2 टके की लड़कियों के लिए अपने माँ बाप का दिल दुखाना, उनको आंसू, खून के आंसू रुलाना, उनकी बेहुरमती करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको इतना नीचा गिरा देना कि औरत उनके सर पे खड़े होकर टांड्रफ करे और आप खड़े होकर तालियां बजाओ, और आपके कहने पर आकर आपके माँ बाप इस कदर दुखी हो कि वो बेचारे बर्दाश्त ना कर सके। ऐसा मत किया करो। मगर चले, जो भी देर आए दुरुस्त आए, आप बच गए या वो बच गए, ताली दोनों हाथों से ही बचती है। चलिए ठीक है, आप लोगों की जो था रिश्ता नहीं चलना था, अलग हो गया। मोहसिन ऑन हो गया, उसने अपनी दुनिया अपनी बसा ली, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। यहाँ पे अंबर की आपने दूसरी शादी तो कर दी, मगर उसके दिल से मोहसिन का प्यार, मोहसिन की जो लुक थी ना, वो ख़त्म नहीं कर सकी। अगर आप माशाल्लाह से, जो उसका हस्बैंड है अंबर का, वो माशाल्लाह बहुत हैंडसम लड़का है, अच्छी फैमिली का, गुड लुकिंग है, मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी, अंबर से लाख गुना बेहतर है वो। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा घर, अच्छा लड़का, बिल्कुल अच्छी फैमिली ढूंढ के दी है, मगर आपकी बेटी अच्छी फैमिली, अच्छा लड़का डिज़र्व नहीं करती थी। उसने वो भी वही किया, मोहसिन के साथ जैसा किया था उसके साथ भी वही करने की कोशिश की कि उसकी ज़बान से अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ आग उगलवाने की कोशिश की, मगर उसने वो नहीं किया, इसलिए वो बंदा बुरा हो चुका है। अब जनाब, अपना घर है मेरा, मैं ससुराल में नहीं रहती, अपने मैके में नहीं रहती, मेरा अपना घर है। लड़की का कोई घर नहीं होता, मैंने अपना घर खुद बनाया, और अब ये मिसाल कायम कर दी कि लड़की अब चाहे तो अपना घर खुद बना सकती, जहाँ से उसके बाप या भाई नहीं निकाल सकता, शौहर नहीं निकाल सकता, बेटा नहीं निकाल सकता, उसका वो अपना घर। तो मुबारक हो बहुत बहुत, मगर उस घर में को सिर्फ घर बनाने की कोशिश करो। 4 दीवारी जो होती है वो घर नहीं होता है। मगर तुम्हारे दिल से अभी भी मोहसिन की जो मोहब्बत है वो तड़प ख़त्म नहीं हो रही है। जब होता है तुम आ जाती हो स्वीटी के ऊपर टोंट मारने, जब होता है तुम एक पागल कुतिया को हायर कर लेती हो और कह देती हो कि फू जाओ छू, जाके उस पर भौंकना शुरू करो। और वो पागल कुतिया जो होती है वो 2-2 हड्डी की खातिर, $1-1 की खातिर जाकर बिना वजह भौंकना शुरू कर देती। जब वो कुवैत गई उस टाइम तुम्हें आग लग गई, उसका खूबसूरत सा घर देखा तुम्हें आग लग गई, जब उसने अपनी गुड न्यूज़ सुनाई तुम्हें इतनी आग लगी कि तुमने 2-3 कुत्तियाँ उनके पीछे छोड़ दी। पुरानी कुत्तियों को भी तुमने हड्डियाँ डाल के उसके पीछे छोड़ दिया कि जाओ भौंको, जो जितना भौंकेगा, जो जितना काटेगा उसको ज़्यादा हड्डी मिलेगी। उन लोगों ने अपनी जान की जोर लगा दिया और भौंकना शुरू कर दी। एक तो जो दाई अम्मा है उसको तो तुमने पता नहीं प्लेट भर के, थाल भर के, पता देग भर के हड्डी डाली है। वो तो इतनी गलाजत बक रही है, इतनी गलाजत बक रही है, अपने आप को गलाजत बकते हुए उसके सामने लाना, यानी कि अपने आप को कहती कि भाई मैं तो बहुत दबंग हूँ। ये दबंग नहीं होती है, ये होती है वो बगैरत औरत, जिसको औरत कहने पे भी लानत भेजनी चाहिए। ऐसी औरतों को औरत नहीं कहना चाहिए, ऐसी औरतों को वो औरत कहना चाहिए जो टके टके में बिकती हैं, जो धंधे वाली होती है ना, वो इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर जिस तरह से तुम एक औरत के लिए इस्तेमाल कर रही हो। तुम जैसी औरतों पे जो मर्जी कह दो वो तो बुरा नहीं लगता है, मगर किसी शरीफ औरत पे, किसी माँ जो इतने सालों की बाद दुआओं से बनी है, उसके ऊपर इस तरह से उंगलियां उठाना, उसके ऊपर बदकिरदारियाँ करना, उसके जिस्म की बारे में इतनी गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, वो औरत नहीं कहलाती है। वही तुम कहती कि मैं बहुत दबंग हूँ, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूँ, और तुम्हारी 2-4 दलाल औरतें जो हैं वो भी आ जाती हैं कि भाई तुम तो बहुत दबंग, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। मैं तो कहती तुम्हें तो उस हीरा मंडी में जाकर वो जो रंडियों की जो बॉस नहीं होती है,
जी जी वही, वो तुम्हें कहलवाना चाहिए। तुम्हें उस किस्म के जो है ना बातें करने का भी शौक़ है और उस किस्म के राज करने का भी शौक़ है कि मर्दों को उंगलियों पे नचाओ कि हाँ भाई ये औरत तुम्हें आज रात नहीं मिल सकती, ये तो बुक है, वो औरत नहीं मिल सकती, वो तो बुक है, तुम वो औरत हो। समझ गए हो ना, जो कोठे पर बैठकर धंधा करती हैं और इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं और औरतों को इस तरह से टके टके में बेचती हैं। तुम कहती हो कि भाई मैं बहुत पढ़ी लिखी, तुम जैसी औरतें पढ़ी लिखी जो कहलाती हैं ना, वो जहालत से भरपूर होती हैं, जिनको ये तमीज़ नहीं होती कि किसी के बारे में किस तरह बात करनी चाहिए। तुम जैसी जो कहते हैं ना पढ़ी लिखी औरत हूँ, पढ़ी लिखी औरतें इस किस्म की हरकतें नहीं करती हैं। आज लाइव में आकर तुम जिस तरह से भौंक रही थी, जिस तरह से तुम अपनी गलाजत बक रही थी, तुम्हारे साथ 2-3 और आ गई थी। एक पलवशा की कोई कज़न थी या पता नहीं कोई मिलने वाली थी, कौन थी, जिनका चैनल उड़ा दिया था रिएक्शन विद माई व्लॉग ने, तो उनके बारे में आके बकवास करने, जो भी दुश्मन थी, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त सारे तुमने इकट्ठे किए और सबके साथ बैठ के तुम भौंक रही थी कुत्ते की तरह और अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रही थी कि मैं इनके बीच में ना बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उनके हर टॉपिक पे तुम लोगों को आग लगती है। अंबर ने भाई एक लड़की जो है, मैं उसको लड़की तो कहूँगी, औरत ही है, पूरी पक्की हुई 4 बच्चों की माँ है, उसको हायर करके रखा हुआ। और एक जो वो है गटर क्वीन, जो एक और है बड़े नासों वाली, समझ गए होंगे आप लोग, उसको भी हायर करके रखा हुआ। और दूसरी एक चुया जो है, उनको भी। ये 3 है कुतियाँ जो भौंकने के लिए तैयार रहती हैं हर वक्त। ये सब आ गई थी लाइव और आके इन्होंने जो गलाजत बकी है, जो भौंका है, हद कर दी है। जहाँ पे देखती हैं कि स्वीटी जी कोई चीज़ लगाती हैं कि आज भाई मैंने जेंडर रिवील कर लिया, लड़की होगी, बिल्कुल ऐसी होगी, ऐसी किस्मत होगी, फलाना होगी, ढमकाना। तुम्हारी बेटियों की ऐसी किस्मत अल्लाह कर दे, क्योंकि बेटियां चाहे दुश्मन की हो या दोस्त की, कभी बेटियों के लिए ऐसी बद्दुआएं नहीं करते हैं। अगर तुम लोगों की किस्मत इतनी गंदी हो गई है तो कम से कम अपनी बेटियों के लिए दुआएं कर लो, दूसरों की बेटियों के लिए दुआएं कर लो कि अल्लाह में उनकी किस्मत अच्छी करे, हमारी तरह गंदी ना करे। हम लोग जिस तरह टके टके में बिक रही हैं मर्दों के बीच में, वो हमारी बेटियों की किस्मत ना, हमारी बेटी किसी इज्जतदार घराने में जाए। अगर वो बता देती हैं, उन्होंने जूता मारा तुम लोगों के मुंह पे कि भाई बेटा है हमारा, उसमें तुम लोगों को आग लग गई। वहाँ पे अंबरनाथ बैठकर इंस्टाग्राम पे और जहाँ पे उसको मिला है वहाँ पे उसने जाकर खूब बकवासात बकी, बहुत गलाजत बकी, बड़े बड़े पोस्ट लगाने शुरू कर दिए कि भाई बद्दुआएं देनी शुरू कर दी बच्चे को। अगर वो बद्दुआएं पलट कर तुम लोगों की औलादों को लग जाए, अंबर अगर तुम्हारे बेटे को लग जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, तो तुम क्या करोगी? हाथ रगड़ती रह जाओगी। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अगर स्वीटी जी अपने बच्चे के लिए कोई वार्डरोब ले आती हैं तो इस कुतिया को उसमें आग लग जाती है, वहाँ भौंकने के लिए आ जाती है। ये जो तुमने पागल कुतिया पाली हुई है एक दाई अम्मा, ये वहाँ भौंकने शुरू होती, उसकी अम्मा आ जाती, उसको तकलीफ़ होती। यानी कि एक एक छोटी छोटी चीज़ में बिना वजह के भौंकने। इसको पता है कि जब तक मैं स्वीटी पर नहीं भौंकूंगी मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तक मैं मोहसिन सुल्तान का नाम नहीं लूँगी मुझे कोई देखने थूकने भी मेरी शक्ल पे नहीं आएगा। इसीलिए ये बैठकर यहाँ पर भौंकती है कि भाई इन दोनों का नाम लूँगी तो मेरे व्यूज़ आएंगे। जिस दिन इसने इनका नाम लेना बंद कर दिया उस दिन वो उसके व्यूज़ आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि 2-2 टके के लिए जो बिकने वाली औरत है वो डॉलर कैसे छोड़ सकती है ना भाई? अंबर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रियली शेम ऑन यू। एक माँ होते हुए, एक औरत होते हुए तुम इस किस्म की गंदी बकवासियात कैसे कर सकती हो? अपना बच्चा होते हुए दूसरे के होने वाले बच्चे को इतनी बद्दुआएं कैसे दे सकती हो? खुदा की लाठी बेआवाज़ अगर पड़ गई ना तो पूरी ज़िंदगी रोती रह जाओगी, खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। उसकी बच्चे के लिए अगर दुआ नहीं कर सकती तो बद्दुआ भी मत करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे को वो बद्दुआएं लग जाए और तुम फिर वो, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, छोड़ो। मैं स्वीटी जी आपको एक मशवरा देती हूँ बेटा कि आप ऐसा करो कि इन गंदे लोगों के मुंह लगना बंद कर दो। मैंने आपको कहा कि उनके YouTube चैनल देखना बंद करो, उनके इंस्टाग्राम्स के पोस्ट देखना बंद कर दो, उनके रील्स देखना बंद कर दो, उनकी स्टोरीज देखना बंद कर दो। इस टाइम तुम्हें बिल्कुल खुशियों की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। हमारी दुआएं दिल से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बहन भाई सब तुम्हारे साथ हैं। तुम उनको देखो, अपनी खुशियों को देखो
ان تمام گندے لوگوں کو اگنور کرو. ایسے حالت میں تم اگر ٹینشن لوگی تو تمہارے اوپر بھی اثر پڑے گا, تمہارے بچے پہ بھی اثر پڑے گا. اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے, جلد تمہیں خیر خیریت سے فارغ کرے اور تمہیں صحت مند اولاد دے. آمین ثم آمین. چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.